اگلے روز صبح جاگا تو تمام لوگ اپنے اپنے مشاغل میں مصروف تھے۔ کھانے پینے کی جو اشیاء موجود تھیں ان سے ناشتے کا بندوبست کیا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے لیے چند پھلوں کا انتخاب کیا، اس کے علاوہ بھلا یہاں اور کیا مل سکتا تھا۔ پروفیسر بھی میرے ساتھ ناشتے میں شریک ہو گئے۔ میں نے برڈ کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں لیکن برڈ مجھے نظر نہ آیا۔ میں نے پوچھا، برڈ کہاں گیا پروفیسر؟ پروفیسر نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر چونک کر بولا، ارے وہ تو مجھے صبح سے نظر نہیں آیا، حالانکہ میں پہلے سے جاگا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ بولا، میرا خیال ہے برڈ یہاں موجود نہیں۔ میں کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن برڈ موجود نہیں تھا۔ برڈ کو ہر ممکن جگہ تلاش کر لیا گیا لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ سب لوگوں نے پریشانی کا اظہار کیا لیکن میں نے مطمئن انداز میں کہا، نہیں پروفیسر، اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے، ضرور وہ اپنے پروگرام کے تحت گیا ہے۔ پروفیسر بولا، مجھے بھی یقین ہے لیکن ہمیں یہاں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے کیونکہ کسی کی ذرا سی بھی غلطی سے حالات ہمارے خلاف ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کا کہنا بالکل درست ہے پروفیسر، لیکن ایک بات بارہا میرے مشاہدے میں آئی ہے، بعض اوقات جتنی زیادہ احتیاط برتی جائے اتنا ہی نقصان دہ ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں تیز رفتاری سے اپنا کام کرنے کے لیے اس قسم کے خطرات مول لینا ہی پڑیں گے۔ جوناتھن نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں یہ بات میں جانتا ہوں، اگر آپ مطمئن ہیں مسٹر علی تو پھر مجھے کوئی تشویش نہیں۔ میرے خیال میں برڈ خود بھی سمجھدار آدمی ہے، میرے ساتھ مہمات میں شریک ہو چکا ہے، اس کی حرکتیں بعض اوقات بچگانہ ضرور ہوتی ہیں لیکن اس نے ہمارے لیے کبھی کوئی خطرہ پیدا نہیں کیا۔ جوناتھن خاموش ہو گیا۔ سارا دن برڈ کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ اوٹوکان اور میکنو کو میں نے اس پروگرام کے تحت بھیج دیا تھا جو ہم پہلے ترتیب دے چکے تھے، یعنی یہ کہ اگر اتفاق سے سانبین کے باشندے بھی اسی دوران ادھر کا رخ کر لیں تو ان پر نگاہ رکھی جائے۔ یہ رات بھی اسی انداز میں گزر گئی۔ برڈ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس کی اس طویل گمشدگی نے اب کسی قدر مجھے بھی تشویش کا شکار کر دیا تھا۔ چنانچہ دوسرے دن کے لیے میں نے کچھ منصوبے ترتیب دے لیے۔ پروفیسر جوناتھن سے میں نے دوسری صبح کہا کہ میں خود بھی اب بستی میں چہل قدمی کروں گا۔ جوناتھن نے کوئی جواب نہ دیا، ان کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ پھر انہوں نے کہا، میں رات کو بھی اپنے کام میں مصروف رہا ہوں، جہاں انتہائی منظم پیمانے پر وائرلیس پیغامات کے ذریعے طریقے گفتگو رائج ہیں، جگہ جگہ ایک دوسرے کو پیغامات نشر کیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا، خوب پروفیسر، آپ کی مشین تو کام کر رہی ہوگی؟ وہ بولا، ہاں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی بات معلوم نہیں ہو سکی جو کارآمد ثابت ہو۔ ایک بات میں بھی آپ کو بتا دوں مسٹر علی کہ جب آپ واپس آئیں تو ممکن ہے میں بھی آپ کو نہ مل سکوں، لیکن میرے بارے میں کسی تشویش کا شکار نہ ہوں۔ میں نے کہا، ہم سب کو ان حالات میں اپنی فہم و فراست کے مطابق کام کرنا ہے پروفیسر جوناتھن، اس لیے میری طرف سے کسی پر کوئی پابندی نہیں۔ پروفیسر نے سر خم کر کے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں اپنے لیے جو لائحہ عمل منتخب کر چکا تھا اس کے تحت کام کرنے نکل گیا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ بستی کے اندرونی حصوں میں داخل ہو کر ان لوگوں کے معمولات کا جائزہ لوں، لہٰذا اس پروگرام کے تحت میں بستی کی جانب چل پڑا۔ بونیگا پوری طرح آباد تھا اور وہاں کی زندگی میں ایک سلیقہ پیدا ہو چکا تھا۔ یقیناً اسٹیفن براکوڈا نے ان لوگوں پر دسترس حاصل کرنے کے بعد انہیں تہذیب سے آشنا کرنے کی کوشش کی ہوگی، جس کے سبب ان کی بود و باش میں کچھ بہتری پیدا ہوئی ہوگی، لیکن مکمل طور پر تو بہرحال یہ ممکن نہیں تھا کہ انہیں مہذب بنایا جا سکتا، اور پھر یہ براکوڈا کے مفاد میں بھی نہیں ہوتا، لہٰذا افریقہ کی وحشی زندگی کے آثار بھی نظر آ رہے تھے۔ بونیگا کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، بستی کے اطراف میں کھیتی باڑی کے آثار بھی نظر آ رہے تھے۔ زمین سے پانی نکالنے کے لیے ایک باقاعدہ نظام قائم کر دیا گیا تھا جس سے یہ افریقہ کے غیر مہذب وحشی پورا فائدہ اٹھا رہے تھے اور انہیں اس کے استعمال کا طریقہ بھی سکھا دیا گیا تھا۔ میں ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتا رہا اور ایک بار پھر بستی کی آبادی میں داخل ہو گیا۔ اب میرا رخ اس آتشی بت کی جانب تھا جو دن میں صرف بھورے پتھر کا ایک مجسمہ نظر آتا تھا لیکن رات میں روشن ہو جاتا۔ مجسمہ طویل و عریض تھا، اس کے قدموں میں ایک سیاہ رنگ کا چبوترا بنا ہوا تھا جس کے سامنے کے حصے میں قربان گاہ نظر آ رہی تھی۔ اس قربان گاہ کے سامنے ایک بڑا سا پیالہ زمین پر بنا ہوا تھا جس میں گاڑھا گہرا سیاہ خون جمع ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہاں انسانوں کی قربانی بھی دی جاتی ہوگی۔ اسٹیفن براکوڈا نے یہاں کی وحشیانہ رسموں کو زندہ رکھا ہوا تھا اور ان وحشیوں کو مطمئن رکھنے کے لیے نہایت سائنٹیفک طریقے سے کام لیا گیا تھا تاکہ وہ بالکل ہی اس سے برگشتہ نہ ہو جائیں۔ میں اس قربان گاہ سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا یہاں کے مناظر دیکھتا رہا۔ کسی نے میری جانب توجہ نہ دی تھی۔ میری نگاہیں اس دوران ایسے لوگوں کو بھی تلاش کرتی رہی تھیں جو میرے اندازے کے مطابق افریقہ کے باشندے نہ ہوں بلکہ ان کی شکل اپنا کر ان میں گھل مل گئے ہوں، لیکن میں ایک بھی ایسا شخص تلاش نہ کر سکا۔ وہاں سے ہٹ کر میں ایک ایسے حصے کی جانب جا نکلا جسے بازار کہا جا سکتا تھا۔ باقاعدہ دکانیں نہیں تھیں، چیزوں کے انبار جگہ جگہ لگے ہوئے تھے اور ان کے عقب میں انہیں فروخت کرنے والے موجود تھے۔ پتہ نہیں خرید و فروخت کا یہ طریقہ کس بنیاد پر تھا۔ میں جائزہ لیتا رہا
लोग आते और अपनी ज़रूरत की चीज़ें हासिल कर लेते, कोई किसी को कुछ देता और कोई कुछ न देता, और वो आगे बढ़ जाते। समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिलसिले में क्या निज़ाम कायम किया गया है। फिर मेरी निगाह एक शख्स पर पड़ी। ये एक दराज कामत बूढ़ा था जिसकी गर्दन में अजदहा लिपटा हुआ था और लोगों का हुजूम उसके पीछे पीछे जा रहा था। बूढ़ा कुछ खब्तुल हवास मालूम होता था, मकामी ही था। पता नहीं लोग उसे क्या कह रहे थे। वो बार बार उन्हें छिड़क देता। फिर अचानक एक औरत उसके सामने पहुंच गई। उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो गालिबन सो रहा था। औरत बूढ़े के सामने रुक गई। रोते हुए उसने बच्चे को बूढ़े के कदमों में डाल दिया। बूढ़ा ठिठक कर रुक गया। वो औरत को घूरता रहा और औरत रोती रही। फिर उसने बच्चे को देखा और उसके बाद उसने अपनी झोली में हाथ डालकर कोई चीज निकाली और इंतहाई बेदर्दी से बच्चे के मुंह में ठूंस दी। उसके बाद वो बच्चे को अपने पांव से एक तरफ हटाता हुआ आगे बढ़ गया। मेरी समझ में नहीं आया था कि ये सब क्या था। औरत के अंदाज से बड़ी अकीदत झलक रही थी। वो बच्चे को गोद में उठाकर खुशी खुशी एक तरफ चली गई। बूढ़ा कुछ कदम आगे बढ़ गया। दफतन किसी ने मेरे शाने पर हाथ रख दिया और मैं एकदम चौंक पड़ा। पलट कर देखा तो बड को पहचानने में दिक्कत न हुई। मेरे चेहरे पर एक लम्हे के लिए मुसर्रत और हैरत के आसार नमूदार हुए। वो बोला, चलते रहो चीफ, चलते रहो। तमाशे देख रहे हो ना? इस पूरी बस्ती में खेल तमाशे बिखरे हुए हैं। मैंने कहा, तुमने उस शख्स को देखा? वो बोला, हाँ, ये विच डॉक्टर है और यहाँ लोगों का इलाज करता है। बहुत बड़ा आलिम है इस इलाके का। मैंने कहा, और लोग इससे अकीदत रखते हैं। बड ने कहा, बहुत ज्यादा। अगर यकीन ना हो तो सानी से पूछ लो। बड ने अपने साथ कुछ फासले से आने वाली लड़की की तरफ इशारा कर दिया। मैंने मुतहज्जराना निगाहों से पलट कर देखा। लड़की तकरीबन 18-19 साल की थी। खूबसूरत जिस्म और खद्दोखाल भी अफ्रीकी होने के बावजूद दिलकश थे। उसकी स्याह आंखों में मोहब्बत भरी मुस्कुराहट थी। वो बड के करीब पहुंच गई और बड अफ्रीकी जबान में उसे मेरे बारे में बताने लगा। लड़की शायद बड की टूटी फूटी जबान समझ रही थी। उसने हंसते हुए गर्दन हिलाई और फिर कुछ कहा। बड ने कहा, सानी का कहना है कि ये विच डॉक्टर यहाँ बहुत मकबूल है, लेकिन अपनी मर्जी से इलाज करता है। किसी को काबिल इलाज समझता है तो इलाज करता है, वरना अपना अजदहा उस पर छोड़ देता है ताकि उसकी जिंदगी के तकलीफ दे लम्हात मुख्तसर हो जाएं। मैंने कहा, और ये अजदहा? वो बोला, ये अजदहा नहीं है, बड़ी नस्ल का सांप है जो इंतहाई जहरीला है। वो लोगों को विच डॉक्टर के इशारे पर काट लेता है और उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। मैंने कहा, तब तो वो बड़ा खतरनाक आदमी है। बड ने कहा, सूरत से नहीं मालूम होता। तुमने शायद उस पर गौर नहीं किया चीफ। मैंने कहा, मैं तो तुम पर गौर कर रहा हूँ। तुम कहाँ गायब हो गए थे? वो बोला, सानी से मैंने जिंदगी भर के अहद व पैमान कर लिए हैं। इससे वादा किया है कि अब कभी वापस शानबीन नहीं जाऊंगा। मैंने कहा, तो तुम अपनी आवारगी में मसरूफ हो गए। वो बोला, तुम कुछ भी समझ लो चीफ, मेरा ख्याल है हमें बहुत ज्यादा देर तक गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा, तुम वापस कब आओगे? बड ने कहा, जरा सानी पर अपनी मोहब्बत का मुकम्मल एतमाद कायम कर लूं, फिर वापस पहुंच जाऊंगा और तुम्हारे लिए बहुत सी मालूमात भी लेकर आऊंगा। अब मैं चलता हूं। मैंने बेपरवाही से शाने उचका दिए। बर्ड सानी का बाजू पकड़कर आगे बढ़ गया। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बर्ड जहां होता अपने लिए तफरीहात ढूंढ निकालता। अब उस लड़की को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए उसे न जाने क्या कुछ करना पड़ा होगा। दफतन ही मेरे जहन में एक ख्याल पैदा हुआ, अगर मैं भी यहाँ पर किसी से शिनासाई पैदा कर लूं तो ये मेरे लिए मुफीद साबित हो सकता है। मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाकर आगे बढ़ गया। विच डॉक्टर अब निगाहों से ओझल हो चुका था, लेकिन बस्ती का चक्कर लगाते हुए एक बार फिर वो मेरी नजरों में आ गया और मैं अपने जहन में एक फैसला करके वहीं खड़ा हो गया। उसकी हरकत और सकनात अजीब थी। ऐसा महसूस होता था जैसे वो बस्ती के मुख्तलिफ गोशों का गश्त कर रहा है। मैं भी कुछ फासला बरकरार रखे हुए उसकी निगरानी करने लगा। तकरीबन 3 घंटे उस विच डॉक्टर ने बस्ती में गुजारे और फिर वहां से आगे बढ़ गया। मैं बड़ी एहतियात से उसका ताक़ुब करने लगा। न जाने क्यों ये विच डॉक्टर मुझे बेहद पुरअसरार महसूस हुआ था। विच डॉक्टर बस्ती की झोंपड़ियों के दरमियान से निकल आया और अब उसका रुख उन चट्टानों की तरफ था जो बस्ती से कुछ फासले पर नजर आ रही थीं। रास्ते में जगह जगह झाड़ियां और दरख्त मौजूद थे और उनकी आड़ में उस शख्स का ताक़ुब करना कोई मुश्किल काम नहीं था। चुनाचे मैं उनकी आड़ लेता हुआ उसके पीछे पीछे चलता रहा। पहाड़ी टीलों का वसीओ अरीज सिलसिला करीब आ गया तो मैंने देखा कि अक्सर टीलों के दामन में गारों के दहाने मौजूद थे। मैं उसकी निगाहों से बचने के लिए अब टीलों की आड़ ले रहा था। बाज़ औक़ात मुझे चंद लम्हात के लिए रूपोश भी रहना पड़ा था। ऐसे ही एक मौके पर जब मैं टीले की आड़ से निकला तो वो मुझे नजर नहीं आया। मैंने परेशानी से इधर उधर देखा, फिर एक टीले पर चढ़कर चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं, लेकिन विच डॉक्टर का कहीं पता न चला। साफ जाहिर था कि वो टीलों में मौजूद किसी गार में दाखिल हो गया है। इससे ज्यादा जुस्तजू करना मेरे लिए मुनासिब नहीं था। थोड़ी देर तक मैं उन टीलों के अतराफ में चक्कर लगाता रहा, फिर वापसी के लिए पलट गया।
अपनी क़याम गाह तक पहुंचने के लिए बस्ती से ही गुजरना पड़ता था, लेकिन जब एक बुलंद टीले पर चढ़कर मैंने बस्ती की तरफ देखा तो मुझे अपनी दाहिनी समत एक पगडंडी सी नजर आई जो खासी दूर तक चली गई थी, और ये रास्ता एक दूसरे मेहमान कबीले के दरमियान से होता हुआ हमारे पड़ाव तक मुझे पहुंचा सकता था। चुनांचे मैंने उसी तरफ से सफर का आगाज कर दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने लोगों के पास पहुंचने का जो प्रोग्राम बनाया था वो गलत था। ये रास्ता सीधा नहीं जाता था बल्कि काफी टेढ़ा मेढ़ा होकर गुजरता था। अतराफ में दरख्त फैले हुए थे और उन दरख्तों के दरमियान से गुजरने का कोई रास्ता नहीं था। चंद लम्हे सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे पलट जाना चाहिए और सीधे रास्ते से अपने पड़ाव का रुख करना चाहिए। अभी मैं वापस पलटा ही था कि बाईं समत मुझे एक छोटी सी झील नजर आई जो घास के दरमियान घिरी हुई थी। बेख्तियार ही मेरे कदम उस झील की जानिब बढ़ गए थे और फिर इंतहाई ताज्जुब से मैंने उस लड़की को देखा जो झील के पानी से बाहर निकल रही थी। उसके बदन पर मकामी लोगों की तरह पूरा लिबास नहीं था और उसका चेहरा भी यहाँ के बाशिंदों से मुख्तलिफ था। खद्दोखाल में एक नुमाया तब्दीली पाई जाती थी। इंतहाई तीखे नकूश थे, आंखों में भी भूरी भूरी पुतलियां नजर आ रही थीं। उसने मुझे देख लिया था और हैरान सी निगाहों से मुझे घूरे जा रही थी। मैं बेख्तियार उसकी जानिब चल पड़ा और उसके नजदीक पहुंच गया। तब लड़की ने नामानूस जबान में कुछ अल्फाज कहे और मैं अहमकों की तरह उसकी शक्ल देखता रहा। लड़की बेख्तियार हंस पड़ी। फिर उसने एक जुमला कहा जिसने मुझे शदीद हैरत का शिकार कर दिया। बोली, क्या बेवकूफों की तरह देख रहे हो, अहमक कहीं का। हैरत मुझे इसलिए हुई थी कि ये जुमला अंग्रेजी जबान में अदा किया गया था और अंग्रेजी भी निहायत पुख्ता थी। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि इस लड़की का ताल्लुक किसी न किसी तरह स्टीफन ब्राकोडा से हो सकता है और इसके अंग्रेजी बोलने की यही वजह है। चुनाचे मैंने लम्हा भर में एक फैसला कर लिया और अंग्रेजी में ही उसे मुखातिब किया। कहा, तुमने पहले जो जबान इस्तेमाल की थी वो मेरे लिए नामानूस थी। लड़की का चेहरा मुझसे ज्यादा हैरत ज़दा हो गया। बोली, ओह तुम, लेकिन तुम, मैं तो तुम्हें नहीं जानती। मैंने कहा, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। वो बोली, क्या जानते हो मेरे बारे में। मैंने अंग्रेजी में जवाब दिया, यही कि तुम एक लड़की हो। उसका अंग्रेजी बोलने का अंदाज इंतहाई नफीस था, मुझे बहुत पसंद आया। मेरे इस जवाब पर वो हंस पड़ी। बोली, ये तो कोई जवाब ना हुआ। हैरतनाक तो तुम हो कि इस हुलिये में नजर आने के बावजूद इतनी उम्दा अंग्रेजी बोल रहे हो। मैंने कहा, यही हैरत मुझे भी तुम्हें देख कर हुई है। वो बोली, मेरी बात मुख्तलिफ है। तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा, अली। वो बोली, एली, क्या तुम मोज़ेल के आदमी हो। मोज़ेल के लोगों में तो तुम्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने कहा, अब इसमें मेरा क्या कसूर है। उसकी मुस्कुराहट अचानक रुखसत हो गई। बोली, गोया तुम मोज़ेल ही के आदमी हो। मैंने कहा, और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं मोज़ेल का आदमी नहीं हूँ तो। वो बोली, तो जाहिर है मैं यकीन नहीं करूंगी। मैंने कहा, और अगर तुम्हें ये यकीन आ जाए कि मैं मोज़ेल का आदमी नहीं हूँ तब। वो बोली, पता नहीं तुम कैसी गुफ्तगू कर रहे हो। ये कहकर वो पलट कर वापस चल दी। मैंने कहा, सुनो, ये गलत बात है। तुमने मुझसे मेरा नाम पूछ लिया लेकिन अपना नाम नहीं बताया। बोली, मेरा नाम पूछ कर क्या करोगे, मैं किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं रखती, ये मेरे बाप का हुक्म है। मैंने कहा, फिर भी कम से कम अपना नाम तो तुम्हें बताना ही चाहिए, जबकि तुमने मुझसे मेरा नाम पूछा है। बोली, अजीब आदमी हो, मेरा नाम ऐना है। मैंने कहा, और तुम्हारे बाप का नाम। लड़की ने कहा, उसका नाम होंदू है। मैंने कहा, ऐना होंदू। अगर मैं तुम्हें वाकई यकीन दिला दूं कि मैं मोज़ेल का आदमी नहीं हूं तो तुम्हारा रवैया मेरे साथ क्या होगा। वो बोली, मैं नहीं जानती। मैंने कहा, लेकिन मैं जानता हूँ। वो चंद लम्हे मुझे घूरती रही, फिर यकबारगी हंस पड़ी। बोली, बस अब जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मैंने कहा, कमाल है, कम से कम जबान के रिश्ते से तो हम दोनों को दोस्त होना चाहिए। वो बोली, लेकिन मैं मोज़ेल के किसी आदमी से गुफ्तगू नहीं कर सकती। मैंने कहा, मैं मोज़ेल का आदमी नहीं हूँ, इस पर यकीन कर लो। वो बेयकीनी के अंदाज में मुझे देखती रही, फिर बोली, मोज़ेल के आदमी नहीं हो तो इस हुलिये में यहाँ क्यों हो। मैंने कहा, इसका जवाब जरा तफसील से ही दिया जा सकता है, बशर्ते कि तुम मेरे पास थोड़ी देर बैठना पसंद करो। अब देखो ना, तुम इतनी उम्दा अंग्रेजी बोल रही हो, लेकिन तुम्हारा लिबास यहाँ के लोगों का सा है, मगर तुम्हारा चेहरा यहाँ के लोगों का सा नहीं। यहाँ कोई भी तुम्हारा मद्दे मुकाबिल नहीं हो सकता। क्या तुम इस इलाके की सबसे हसीन लड़की नहीं हो। वो बोली, ओ नहीं, मोज़ेल की दूसरी लड़कियां भी हैं, वो सब यहाँ की नहीं। यहाँ के बाशिंदों के खद्दोखाल वाकई खराब होते हैं। मैंने पूछा, तुम कौन हो। वो बोली, मैंने कहा ना, ऐना, और बस इससे ज्यादा मैं तुमसे गुफ्तगू नहीं कर सकती। उसने कहा और तेज कदमों से वापस चली गई। मैं खामोशी से उसे देखता रहा, लेकिन बहुत से सवालात मेरे जहन में चकराने लगे। लड़की जब निगाहों से ओझल हो गई तो मैं वापसी के लिए पलट गया। मोज़ेल, मोज़ेल, मेरे जहन में यही लफ्ज चकरा रहा था। फिर मैं वापस उस जगह पहुंचा जहां से सीधा रास्ता इख्तियार किया जा सकता था, और थोड़ी देर के बाद मैं अपने साथियों के दरमियान पहुंच गया। प्रोफेसर जोनाथन भी उस वक्त मौजूद नहीं था। बाकी लोग अपने अपने मामूलात में मसरूफ थे। कोई खास बात नहीं हुई थी, चुनाचे मैं आराम करने के लिए लेट गया। लेकिन मेरे जहन में बहुत से सवालात चकरा रहे थे। लड़की की तरफ मैं जिस इरादे के तहत बढ़ा था वो पाया तकमील को नहीं पहुंच सका था,
लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था कि उसे दोबारा तलाश करूंगा। मुमकिन है लड़की मेरे लिए करामत साबित हो। उसके अंदाज से किसी कदर मासूमियत का इजहार होता था। लेकिन होंदू की बेटी ऐना आखिर है कौन? और ये मुज़ैल कौन है? मुज़ैल का मसला बड की आमद पर हल हो गया। उसने मुस्कुराते हुए अकब से मुझे मुखातिब किया। उसे देखकर मैंने एक गहरी सांस ली। कहा, तो तुम्हें अपनी महबूबा से छुटकारा मिल गया? वो बोला, हाँ चीफ, इजाजत लेकर आया हूँ, रात को फिर वापस जाऊंगा। मैंने कहा, जल्द ही मारे जाओगे? बोला, अगर मारा भी जाऊं चीफ तो तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करके ही जाऊंगा, इत्मीनान रखो, मैं कुछ मालूमात हासिल करके आया हूँ। मैंने कहा, कैसी मालूमात? इस तरफ आ जाओ। बर्ड करीब आकर मेरे साथ बैठ गया। मैंने कहा, हाँ अब बताओ क्या हुआ? वो बोला, बहुत कुछ हुआ है चीफ। यहाँ कुर्बानी की रस्म भी अदा की जाती है, लेकिन कुर्बान सिर्फ वो लोग होते हैं जो किसी भी तरह स्टीफन ब्राकोडा के मुखालिफ होते हैं। और ये बात शायद तुम्हें मालूम करके हैरत हो कि स्टीफन ब्राकोडा को यहाँ मुज़ैल के नाम से याद किया जाता है। मेरे जहन में एक छनाका सा हुआ। ओह, तो मकामी बाशिंदे उसे मुज़ैल कहते हैं? वो बोला, हाँ, एहतराम से, प्यार से, मोहब्बत से उसे मुज़ैल ही कहा जाता है। मैंने पूछा, वो यहाँ किस हैसियत से रहता है? बर्ड ने कहा, एक अजीम देवता की हैसियत से, जिसकी ज़ियारत सिर्फ उस वक्त होती है जब कोई कुर्बानी देनी हो या कोई ख़ास मसला सामने आए। मैंने कहा, ओ, ये तमाम मालूमात तुम्हें आसानी से हासिल हुई हैं? वो बोला, वाह चीफ, तुमने उसका नाम खूब याद रखा। मैंने कहा, हाँ, आखिर वो तुम्हारी महबूबा थी, क्यों ना याद रखता। फिर पूछा, लेकिन मुज़ैल रहता कहाँ है? वो बोला, ये कोई नहीं जानता। वो पहाड़ों में ही कहीं रहता है, लेकिन कहीं भी किसी भी जगह नमूदार हो जाता है। बस यूं महसूस होता है जैसे जमीन ने मुंह खोला हो और मुज़ैल उसमें से बरामद हो गया हो। मैंने कहा, गोया उसकी कोई रिहाइश गाह नहीं है। बर्ड ने कहा, क्यों नहीं होगी चीफ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही मालूम होगा, बशर्ते कि तुम मुझे सानी के साथ वक्त गुजारने की इजाजत दे दो। मैंने कहा, वक्त गुजारने की इजाजत दे सकता हूँ बर्ड, लेकिन जिंदगी गुजारने की नहीं। उसने हंसते हुए कहा, कमाल करते हो चीफ, ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं यहाँ जिंदगी गुजार दूंगा? मैं खामोशी से उसकी सूरत देखने लगा। मैंने कहा, इसके अलावा और कुछ बर्ड? वो बोला, नहीं चीफ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मालूम हो सका, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं रफ्ता रफ्ता बहुत कुछ मालूम कर लूंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे इस रफ्ता रफ्ता को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। फिर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता हो गया। मैं प्रोफेसर जोनाथन के बारे में सोचने लगा, जो बर्ड की तरह गायब हो गया था। पहाड़ों की ओट से चांद ने सर उभारा तो बर्ड मुझसे इजाजत लेकर चला गया। उसे अपनी महबूबा के पास पहुंचना था। प्रोफेसर जोनाथन का अभी तक कोई पता नहीं था। चुनाचे मैं भी आराम करने के लिए लेट गया और नामालूम मुझे कब नींद आ गई। दूसरी सुबह उनमें से किसी का इंतजार किए बगैर मैं उस छोटी सी झील की जानिब चल पड़ा जो पिछले दिन देख चुका था। जब मैं झील के नजदीक पहुंचा तो तकरीबन 9 बज रहे थे और हैरत की बात यह थी कि वो लड़की झील में तैराकी कर रही थी। गालिबन ये काम भी उसके रोजाना के मामूलात में से एक था। उसने जो लिबास उस वक्त पहना हुआ था वो तैराकी के लिए मौजू था। उसका लिबास भी मेरे लिए हैरत का सबब था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।